Hello student, today we will start with lesson number 4, standard 8, Gujarat board. The chapter name is How the Traders Become Rulers. Before starting this chapter, let us revise our first chapter of this book. Why I am revising you the first chapter? Because the first chapter is of history and that chapter is related with chapter number 4. Now in first chapter we had studied that how different European countries merged and came in India for trading, right? In that Britishers also came over here for trading. After some span of time, they started conquering our territories. And when that incident happened, in Bengal that happened. They had a two battle. One battle was Battle of Plassey and the other battle was Battle of Buxar. What we saw that the last Mughal emperor, who was the last Mughal emperor, Aurangzeb, he gave a royal order to British traders. And what was that royal order? To trade over here duty free. यानी कि ट्रेडिंग दो साइड से होती थी, पर आप यहाँ पे जो भी ट्रेड कर रहे हो उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना है. जिसके बाद बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको ये पसंद नहीं आया. उन्होंने क्या किया? नेगोशिएट किया. पहले नेगोशिएट किया ब्रिटिशर से. जब नेगोशिएशन में ब्रिटिशर नहीं माने तो क्या हुआ? वॉर हुआ. और वो फर्स्ट वॉर थी ब्रिटिशर और नवाब ऑफ सिराजुद्दौला के बीच. दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी, in which Sirajuddaulah was killed, defeated, and Mir Zafar became the next Nawab of Bengal. But again, the Mir Qasim when came as a Nawab, there was another battle, Battle of Buxar, between Nawabs and Britishers. And that way, Bengal provision went under the British power when Robert Clive was main head of that time. Okay, so from that incident we saw that how Britishers started gaining the territories. The first territory which they gained or conquered or ruled was Bengal. After that what they did, now when they got Bengal, बंगाल से उनको क्या मिलने लगा? रेवेन्यू मिलने लगा. रेवेन्यू यानी कि इनकम जो उनको मिलता था प्रोविंस से, वो स्टेट से. तब उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम बाकी भी जो टेरिटरीज है उसको कॉन्कर करने लगे तो हमें काफ़ी रेवेन्यू मिलेगी. इस रेवेन्यू से ब्रिटिश की जो आर्मी है उसका खर्चा निकलेगा. वो हमारी ही रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू से ही ट्रेडिंग भी करेंगे. और इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम दूसरी टेरिटरीज को भी कॉन्कर करना शुरू करेंगे. अब हर बार तो वो वॉर कर नहीं सकते हैं, तो वो लोग आए इनडायरेक्ट पॉलिसी से. स्ट्रैटेजी उन्होंने शुरू की इनडायरेक्टली, यानी कि वो अलग अलग तरीके से किंग्स को बोलते थे, अलग स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज अपनाते थे और उनकी टेरिटरीज को एनेक्स करते थे. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली जो पॉलिसी है जो ब्रिटिश ने अप्लाई की थी वो थी वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी. उसको क्या बोला जाता है? सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी. इस पॉलिसी को दूसरा भी नाम दिया जाता है स्लो पॉइजन. वो क्यों? आई विल एक्सप्लेन. नाउ पेज नंबर 19 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 4, हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स. Wellesley policy of expansion, right? This policy is also known as subsidiary alliance policy. This policy was introduced by Wellesley. He was the Governor General. When he was the Governor General, it was necessary to check France from becoming powerful in India. So what British rule started? They started to expand their rule. That time Wellesley introduced with a new plan which was known as subsidiary alliance. Okay, so that new plan was known as subsidiary alliance policy. Now alliance का मतलब क्या होता है? alliance का मतलब होता है to join. As per the scheme, अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी वो क्या गए? वो प्रिंसली स्टेट के पास गए और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सामने एक डिमांड की. As per the scheme, any princely state जिसने ब्रिटिशर के साथ अलायंस एक्सेप्ट किया तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होते थे. सबसे पहले ब्रिटिश की आर्मी मेंटेन करनी थी. किसको?
प्रिंसली स्टेट को, यानी कि इंडिया का जो भी रीजन है उसके राजा को ब्रिटिश के साथ सब्सिडियरी अलायंस करना होता है, जिसके अंडर उसको ब्रिटिश की आर्मी को मेंटेन करना होता है और एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रॉयल कोर्ट में रखना होता है। ठीक है, हैज पर सब्सिडियरी अलायंस स्कीम एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी। तो उसको ब्रिटिश आर्मी रखनी होती है और उसका मेंटेनेंस यानी उसका खर्चा करना होता है। एज वेल एज कीप अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव भी रखना पड़ता है रॉयल कोर्ट में। दिस वे ब्रिटिश क्या कर रहा था, उसकी आर्मी को मेंटेन कर रहा था, खुद का कोई भी ब्रिटिश अपने पॉकेट में से कोई भी खर्चा नहीं कर रहा था, उसकी आर्मी देती थी उसने प्रिंसली स्टेट को और उसका सारा खर्चा कर रहा था इंडियन स्टेट। However, the princely states, now what was the clause? उनको क्या बोला था कि आप मेंटेन तो करो पर आप हमारी आर्मी को यूज नहीं कर सकते हो। However, the princely states were not allowed to utilize, यानी to use the army at its own will, अपनी मर्जी से जो ब्रिटिश आर्मी इंडियन स्टेट ने मेंटेन करनी है उसको वो यूज नहीं कर सकते। दिस सिस्टम जो स्टार्टिंग में उनको सिक्योर फील करवाई बिगनिंग में, धीरे धीरे उनको एनस्लेव और थ्रेटन लगने लगी। सो दैट इज वाई सब्सिडियरी अलायंस इज ऑल्सो नोन एज स्लो पॉइजन। ठीक है, मैं एक बार वापस आपको समराइज करवा देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू सब्सिडियरी अलायंस ब्रिटिशर एक इंडियन स्टेट के पास जाता है, उसको ये बोलते हैं कि आप हमारे साथ अलायंस कर लो। अलायंस करने में वो इसलिए बोलता है कि आप हमारी ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करना है और हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपके कोर्ट में रखता है, पर आप हमारे ब्रिटिश आर्मी को यूज नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से, पर ब्रिटिश आर्मी का सारा मेंटेनेंस करवाना है। और वो टेरिटरी को कैसे एनेक्स कर लेते थे। ऐसा क्या होता था कि ये अलायंस पॉलिसी लेने के बाद वो इंडियन स्टेट ब्रिटिश के पास चली जाती थी। उसके सामने उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर आप हमारी आर्मी को मेंटेन नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिक आपकी टेरिटरी चली जाएगी ब्रिटिश आर्मी के पास। ठीक है, द इंडियन स्टेट्स दैट बिकेम, अब सबसे पहला सब्सिडियरी अलायंस का विक्टिम बना था हैदराबाद, फिर मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवा ऑफ पुणे, शिंदेज ऑफ ग्वालियर। इस तरह से एक एक करके सारे स्टेट्स। निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो सबसे पहला विक्टिम था वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस। उसके बाद मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान, उनके साथ और ब्रिटिशर की काफ़ी प्रोलॉन्ग वॉर हुआ था, जिसके बाद मैसूर टीपू सुल्तान वॉज किल्ड और मैसूर उन्होंने एनेक्स कर दी थी। तंजौर, कर्नाटका, फिर मराठास के साथ भी 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी और वो भी सब्सिडियरी अलायंस में चले गए थे। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई जिसमें मराठा थोड़ा सा वीक हो गया, तब उनको पता चल गया कि वो दिल्ली में थोड़ा अब अपना रूल नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई जिसमें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में वो हार गए और साउथ इन इंडिया जो मराठा पावर था वो डायरेक्टली ब्रिटिशर के पास चला गया। ओइंग टू द पेज नंबर 20, owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept his alliance. अब मैं आपको ये लाइन समझाती हूँ कि जब निज़ाम, हमें पता है कि इंडियन स्टेट्स के बीच में भी फाइट होती थी, इंडियन स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे उनके बीच में भी फाइट्स होती थी। तो एक जब प्रिंसली स्टेट हार जाता था तो ब्रिटिशर उसके पास जाता था और उसको बोलते थे आप हमारे साथ सब्सिडियरी अलायंस कर लो कि हम आपको हेल्प करेंगे मराठा को हराने के लिए। इस तरह से जो हारा हुआ प्रिंसली स्टेट होता था वो अलायंस कर लेता था। तो निज़ाम था वो सब्सिडियरी अलायंस में चला गया। फिर टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर की बात होती है, उसने मना कर दिया, वो नहीं चाहता था कि मुझे कोई भी सब्सिडियरी अलायंस आपके साथ नहीं करना है, आपकी कोई भी ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन नहीं करना है, आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं करना है। क्यों? उसको फ्रेंच के साथ अच्छे टर्म थे। विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच उसने उसकी आर्मी को काफ़ी मॉडिफाइड कर दिया था।
टीपू सुल्तान काफ़ी ब्रेव था। मोस्ट ऑफ जो चीज़ें थी मैसूर से वो एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटिशर के साथ, तो उसने बंद करवा दिया और वो फ्रांस के साथ ट्रेडिंग करना उसने शुरू कर दिया। तब ब्रिटिशर को लगा कि अब टीपू सुल्तान से तो थोड़ा सा खतरा है और उन्होंने 4 वॉर विद मैसूर किया, दैट इज विद टीपू सुल्तान। और जो 4th वॉर थी एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया एंड द मैसूर वॉज फोर्स टू बिकम अ सब्सिडरी स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से मैसूर भी सब्सिडरी स्टेट में अलायंस में चला गया। तो टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर व्हेन इट रिफ्यूज्ड, ब्रिटिश ने 4 वॉर किया, 4 एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें 4th बैटल में टीपू सुल्तान को मार दिया गया और इस तरह से मैसूर भी उन्होंने ले लिया। अब सब्सिडरी अलायंस उन्होंने कैसे मराठास यानी कि नॉर्थ साउथ इंडियाज में उन्होंने कैसे कैप्चर किया। ठीक है, मराठा चीफ ने अभी देखो मराठा के चीफ्स थे, यानी कि मराठास का जो भी रीजन था, साउथ जो भी रीजन था, उसमें अलग अलग उनके क्या होते थे, चीफ्स होते थे, उनके अलग सरदार। तो उसमें जो लास्ट चीफ उनका था नाना फडणवीस, वो काफ़ी लड़े थे। उनके मरने के बाद मराठा को एक दूसरा विक्टिम बनाया गया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का। ठीक है, इस तरह से मराठा पावर भी चला गया था। उसके बाद अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटक, फरुखाबाद, इस तरह से 7 ईयर्स तक वेलेस्ली पॉलिसी ने सब्सिडरी अलायंस अपना के पूरा बंगाल, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ उन्होंने इस तरह से कैप्चर कर लिया।